Hello, children. Today, I decided to tell you one story of Sinbad and the Gigantic Whale, the first voyage of Sinbad. Students, I think, and I wish to tell you some stories so that you will remain with my channel and you will get so many videos, good videos for your study. And besides the teaching of literature and language, I decided to tell you some stories of different languages, of different regions, of different countries, where such stories are very popular. Some of the stories are in your books and some are not. They are the common folk tales also. Sinbad and his adventurous stories are very popular all over the world. Some of the stories are very funny and interesting and adventurous. The first voyage of Sinbad is very interesting and funny. It's about a whale. Whale is the largest mammal in the world, and the largest mammal in water. The largest animal on the land is elephant, and in water it is whale. Okay, you know it in your general knowledge book. You have already studied about the whale. Okay, students, before telling the story, I want to tell you there are two Sinbad. चिल्ड्रेन, इस कहानी के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इस कहानी शुरुआत कैसे होता है। सिंबाद एक बहुत ही धनी मर्चेंट थे। इनके फादर भी एक मर्चेंट थे और इन लोग इराक में रहते थे। इराक, द कैपिटल ऑफ इराक इज बगदाद। ओके, ये धनी सिंबाद एक दिन अपना पैलेस से एक आदमी को देखा। एक मार्केट प्लेस में एक आदमी को देखे। दैट मैन was also named the same name Sinbad, and that poor Sinbad was blaming to the god how poor he was and how unfortunate he was. He had nothing to else. He was unwealthy man. He was very poor. And he was a potter. Potter means, coolie, who carries the goods from one place to another. You must have seen in the station, railway platforms, there are the potters. Okay, students? Sinbad, the rich Sinbad, called that Sinbad in his palace and assured him that he would give some gold coins for hearing his adventurous voyage. चिल्ड्रेन, समझ गए होंगे। रिच सिंबाद जिनका कहानी हम लोग सुन रहे हैं, वह उस पोर सिंबाद को बुलाए और उन्हें बताए, ठीक है, तुम्हारा इस गरीबी हालत को मैं दूर कर दूंगा, तुम मेरा कहानी को सुनते रहना और तुम्हें कुछ मैं गोल्ड कॉइन्स दूंगा। वो बेचारा पूर सिंबाद कहानी सुनने लगा। अब यही से हम लोगों को इस कहानी का बैकग्राउंड शुरू होता है। नाउ सी दैट व्हाट एवर टुडे
I am going to tell you, that is about a whale fish and Sinbad and his crew. Okay students, let's start. ये एक विशालाकार व्हेल मछली था जो समुद्र के ऊपर में सरफेस में कई सालों तक ऐसे ही पड़ा रहा, जिसके कारण में उसके पीठ पर काफ़ी पेड़ पौधा जम गए और दूर से इस जगह को देखकर लगता था कि ये एक आइलैंड है, कोई ज़मीन का टुकड़ा है। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? That is the whale fish, and on his back you see that is a little village, little island. It looks like that. दूर से लोगों को एक आइलैंड जैसा नज़र आता था। अब यही से हम लोगों का कहानी शुरू होता है। Now let's start the story. After dissipating the wealth left to him by his father, Sinbad goes to sea to repair his fortune. He sets ashore on what appears to be an island. Children, पहले मैंने आपको बताया सिनबाद के फादर काफ़ी धन संपत्ति छोड़ के गए थे। फिर भी सिनबाद डिसिपेटिंग द वेल्थ, ये सभी संपत्ति को दूर में रखते हुए अपना खुद फॉर्च्यून भाग्य को आजमाने के लिए समुद्र यात्रा किए। उन्होंने कई समुद्र यात्रा किए और अलग अलग एडवेंचरस स्टोरीज सिंदबाद ने हम लोगों को बताए। सिंदबाद कहते हैं कि वही लोग जब समुद्र में जा रहे थे, कई महीना के बाद बहुत वो लोग टायर्ड हो गए, थक गए और दूर में देखे एक आइलैंड को दिखाई दिया। उस आइलैंड को देखकर उनके लोग वहाँ पर रुकने के लिए कहा। सिंदबाद और अपना जितने सेलर्स क्रू थे, लेवर्स थे, सभी लोग वहाँ जाके रुके, वहाँ जाके उतर गए। ऐसे ही कहानी है। उतरने के बाद लोगों ने सोचा चलो इतना दिन के बाद हम लोगों को ज़मीन मिला। लोग आराम करने लगे, यहाँ वहाँ दौड़ना शुरू कर दिए। कुछ लोग खाना बनाने का इंतज़ाम करने लगे, जैसे हम लोग पिकनिक में करते हैं। उस समय में लकड़ी जला के खाना बनाने का सिस्टम था। लोग उस आइलैंड में देखो कैसे क्या होता है। बट दिस आइलैंड प्रूव्स टू बी ए गिगनेटिक स्लीपिंग व्हेल ऑन व्हिच ट्रीज हैव टेकन रूट एवर सिंस द व्हेल वाज यंग। बहुत सालों से ये व्हेल मछली उसी समुद्र की सरफेस पर पड़ा हुआ था। इट वॉज स्लीपिंग मोड में था और इसके कारण में उसके बैक पर, उसके पीठ पर काफ़ी पेड़ पौधा जम गए थे और दूर से लोग इसे आइलैंड समझता था। Awakened by a fire kindled by the sailors, the whale dives into the depths. आप समझ रहे हो? Now how the funny the situation was. अब सेलर्स लोग सोचे चलो हम लोग खाना बनाते हैं। खाना बनाने के क्रम में लोग लकड़ी जलाने शुरू किए। लकड़ियाँ को जलाए, जैसे ही आग लगा, ऐसा ही आप सोच सकते हो। अब व्हेल मछली के पीठ पर आग लगा दोगे तो क्या होगा? मूवमेंट शुरू हो गया। वो व्हेल फिश हिलना शुरू किए, क्योंकि उसका बैक पर लोगों ने आग जला दिए, लकड़ियाँ जला दी। अब वो व्हेल पानी में धीरे धीरे डूबने लगा। लोग चारों ओर भागना शुरू किए। कुछ लोग तो जहाज पर फिर से चढ़ गए, कुछ लोग उस आइलैंड में मीन्स दैट ऑन द बैक ऑफ द व्हेल ही रह गए और पानी में डूब भी गए। काफ़ी लोग मर गए। कुछ लोग अपना जान बचाए, किसी तरह से उस जहाज़ को पकड़ लिए और फिर से चलना शुरू किए। इसी क्रम में सिंदबाद वही समुंदर में रह गए, लेकिन वो डूबे नहीं।
See that. After that, what happened? The whale dives into the depths. डूबना शुरू की. The ship departs without Sinbad, and Sinbad is saved by the chance of a passing wooden trough sent by the grace of Allah. भाग ने उन्हें बचा दिया. इसी क्रम में एक बड़ा सा सूखा लकड़ी समुंदर में तैरते हुए जा रहा था. उसे वो पकड़ लिए और किसी तरह से सिंबाद समुद्र में ना डूबकर धीरे धीरे किनारे आ गए. और बाकी लोग कुछ तो डूब गए, कुछ लोग जहाज़ में किसी तरह से जान बचाते हुए चले गए. सिंबाद बेचारे समुद्र में इसी तरह से उस लकड़ी के सहारे में किनारे आते हैं. ही इज़ वॉस्ड एशोर ऑन ए डेंसली वुडेड आइलैंड. एक घना जंगल एक आइलैंड में वो आए. दूसरा कोई आइलैंड, सचमुच जहाँ आइलैंड हो ऐसे ही कोई आइलैंड में पहुँचे. वाइल एक्सप्लोरिंग द deserted island, he comes across one of the king's grooms. उसी जंगल में एक राजा का घुड़सवार. grooms means the person who looks after the horses in the stable. स्टेबल में घोड़ा को देखभाल करता है, उसको ग्रूम कहता है. यहाँ ग्रूम मीन्स दूल्हा नहीं, ठीक है, घोड़ा को देखभाल करने वाला. ऐसा व्यक्ति से उसका मुलाकात हुआ. When Sinbad helps save the king's mare from being drowned by a sea horse. इस जगह में इस स्टोरी में एक सुपर नेचुरल थिंग है. मतलब क्या है जो हम लोग रियलिटी में नहीं देखते हैं. एक समुद्री घोड़ा राजा का मेयर को, मेयर मीन्स फीमेल हॉर्स, घोड़ी, राजा का मेयर को पकड़ के समुद्र में डुबा रहा था, समुद्र की ओर ले जा रहा था. एक सुपर नेचुरल स्टोरी है इस जगह में. मीन्स दैट मे बी और मे नॉट बी. जैसे हम लोग बोलते हैं ना भूत, जीन, पिशाच, इस तरह का. ऐसे ही सी हॉर्स, एक समुद्री घोड़ा, उस मेयर को अंडर वाटर में ले जा रहे थे. लेकिन सिंबाद ने राजा का किंग्स मेयर, राजा का जो घोड़ी थी, उसे बचा लिए. आफ्टर दैट यू सी द ग्रूम ब्रिंग्स सिंबाद टू द किंग. ये तो होना ही था. वो आदमी सिंबाद को राजा के पास ले आते हैं. द किंग befriends Sinbad and so he rises in the king's favor and becomes a trusted courtier. After that, उस आइलैंड के राजा सिंबाद को दोस्त बना लिए और बहुत विश्वास किए. ट्रस्टेड, बहुत विश्वास किए और सिंबाद को अपना दरबार में कॉटियर, दरबारी बना दिए. जैसे आज आप लोग मिनिस्टर्स के बारे में जानते हो, इस तरह से उस ज़माने में भी मिनिस्टर्स होते थे जिन लोगों को कॉटियर्स कहा जाता था. राजा सिंबाद को एक बहुत ही ट्रस्टेड कॉटियर बना दिए, भरोसेमंद. ऐसे ही दिन चलने लगा. वन डे द वेरी शिप ऑन व्हिच सिंबाद सेट सेल डॉक्स एट द आइलैंड. कईक महीना बाद, कईक दिनों के बाद सिंबाद का वो जहाज़ जो उस व्हेल मछली के पीठ पर सिंबाद को छोड़ के चले गए थे, वो जहाज़ धीरे धीरे उस आइलैंड में आकर पहुंचा. देखो, एंड ही रिक्लेम्स हिज गुड्स स्टिल इन द शिप्स होल्ड. तब भी सिंबाद का गुड्स, जो सामान था, वो जहाज़ पर रखा हुआ था. सिंबाद गिव्स द किंग हिज गुड्स. सिंबाद ने राजा को अपना जो गुड्स था, अपना जो सामान था, बहुत अच्छे अच्छे कीमती सामान राजा को भेंट किए, प्रेजेंट्स किए.
इन रिटर्न द किंग गिव्स हिम रिच प्रेजेंट्स। बदले में राजा भी सिंबाद को कয়েক प्रेजेंटेशन दिए, कয়েক गिफ्ट्स दिए, रिटर्न गिफ्ट दिए। सिंबाद सेल्स दीज प्रेजेंट्स फॉर ए ग्रेट प्रॉफिट। अर्लियर मैंने आपको बताया सिंबाद का यही बिजनेस था, एक देश से संपत्ति को दूसरा देश में ले जाके बेचते थे, फिर उस देश से संपत्ति को अपना देश में ले आते थे और बहुत सारा प्रॉफिट कमा के उसे भी बेचते थे। दैट वाज हिज बिजनेस। नाउ डेज यू हैव सीन द सेम थिंग्स इन द बिजनेस। सिंबाद राजा का इस प्रेजेंट्स को काफ़ी प्रॉफिट से दूसरा देश में जाके बेच दिए। सिंबाद रिटर्न्स टू बगदाद where he resumes a life of ease and pleasure. After that, Sinbad returned to his native, अपना देश लौटे और कয়েক साल तक बहुत आराम से सुख चैन में अपना ज़िंदगी को गुजारे। लाइफ ऑफ ईज एंड प्लेजर, आराम से बहुत सुख में गुजारे। विद द एंडिंग ऑफ द टेल, मैंने पहले बताया, अब देखो वही सिंबाद, दैट इज़ द पुअर सिंबाद। विद द एंडिंग ऑफ द टेल, सिंबाद द सेलर मेक्स सिंबाद द पॉटर ए गिफ्ट ऑफ 100 गोल्ड पीसेस। उस गरीब सिंबाद को, पॉटर सिंबाद को, कुली सिंबाद को 100 गोल्ड पीसेस दिए। एंड बिड्स हिम रिटर्न द नेक्स्ट डे टू हियर मोर अबाउट हिज एडवेंचर्स। और उस पुअर सिंबाद को कहे तुम फिर कल आना और मेरा एडवेंचरस स्टोरीज को सुनना, मैं तुमको फिर से ऐसे ही गोल्ड कॉइन्स दूंगा। नाउ द स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रेन, you must have enjoyed my story. You will remain with my channel. In the next video, I will tell you another tale of सिंबाद। और लगातार आपको मैं कई कहानियाँ सुनाऊंगा। I will tell many stories, so that you must subscribe my channel. Okay students, bye.